Good morning, my dear students. Students, in previous lecture, we have started with our EVS term book third, where we have started with play part, in which we have saw our first topic, that is games and competition, where we have saw what is meant by games. Then we have saw there are two types of games, indoor games and outdoor games. Then we have saw what is meant by competition. Competition means where we compete with each other to win it. So it is known as competition. Then we have saw the first topic, that was entertaining games. So what was entertaining games? Entertaining games means the games where we play for our own entertainment, for our fun, for our refreshment. So those games are known as entertaining games. So in that we have saw various types of games, which was single game, pair game or group game. So we have saw about legs, then lemon and spoon, then we have saw hopping, then we have saw lock and key, blind man buff, catching the cook while climbing the trees. Then we have done an activity related to all those entertaining games, where we have tick out our favorite games, such as legs, then lemon and spoon, blind man buff. Then we have done an activity where we have colored the picture of spoon and lemon. Then we have done an other activity where we have named two other similar games which you like or which we like we have wrote hide and seek and dog and the bone. So these all things we have studied in our previous lecture, that was entertaining games. Now students, in today's lecture we are going to see the next topic. So student, are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting your time, just open your EVS combined book, page number 63. So we are going to start with a new topic. So the topic that we are going to study in today's lecture is sedentary games. What is mean by sedentary games? SEDENTARY, sedentary games. First we will see what is mean by games. Games means outdoor games, indoor games, that we have saw in the previous lecture, where outdoor games means the games that which have been played in open field or on ground are called outdoor games, and indoor games are the games that are being played in a house are called indoor games. So that was about games. But in games there are also various types, like the games which are being played by standing, which are being played by running, which are being played by sitting. So same way the game which are being played by sitting are called as sedentary games. जो गेम नीचे बैठ के हम खेलते हैं, जो गेम हम सिटिंग पोजीशन में खेलते हैं, उसे ही हम sedentary games कहते हैं. So the games that are being played while sitting or in a sitting position are known as sedentary games. So I hope you have understood what is meant by sedentary game. फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, जो गेम हम बैठ के खेलते हैं, यानी नीचे बैठ के सिटिंग पोजीशन में, जो नीचे बैठ के या चेयर के ऊपर बैठ के जो गेम हम खेलते हैं, उसे ही हम sedentary गेम्स कहते हैं. फिर वो गेम कोई भी प्रकार से हो सकता है. जैसे एग्जांपल लूडो गेम हम नीचे बैठ के खेलते हैं. चेस हम चेयर के ऊपर बैठ के खेलते हैं. स्नेक एंड लैडर जो हम नीचे बैठ के खेलते हैं. स्क्रैबल जो हम नीचे बैठ के, तो ये सब गेम्स हम नीचे बैठ के खेलते हैं, हम सिटिंग पोजीशन में खेलते हैं, इसे ही हम sedentary गेम्स कहते हैं. सो आई होप यू हैव बीन क्लियर विथ what is mean by sedentary games. So sedentary games are none other than the games that we play while sitting down or in sitting position are known as sedentary games. Okay, now what is given here, let's see. A tactile skill is anything that involves the sense of touch, and one of the best way to develop this kind of skill is to work on the things like hand eye coordination and activities that develop fine motor skill. Tactile activities. Now what is mean by tactile activities? Tactile activities यानी जो गेम हम सैंड के ऊपर खेलते हैं,
जो गेम हम सैंड के ऊपर खेलते हैं, जैसे एक बॉक्स रहता है, उसके वो बॉक्स पूरा सैंड से फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, और फिर वो ही सैंड के ऊपर हम अलग अलग प्रकार से ड्राइंग्स या कुछ एक्टिविटी करते हैं, बनाते हैं, उसे ही हम टैक्टाइल एक्टिविटीज़ कहते हैं. सो आई होप यू हैव गॉट इन करेक्ट. यहाँ पे हम हमारा बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम हमारे हाथों का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पे हम टच करते हैं, फील करते हैं, जो भी वस्तु को हम टच करें उसको हम फील करते हैं, और उसके बाद हम उससे कुछ बनाते हैं, यानी यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है, टच करते, फील करते हैं. और यहाँ पे हम अलग अलग आइडियाज़ यूज़ करके अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करते हैं. टू डेवलप दिस काइंड ऑफ शील्ड इज टू वर्क ऑन द थिंग्स लाइक हैंड आई कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ पे हमारा हाथ का और आई का कोऑर्डिनेशन होता है. सो ये करने से हमारे जो मोटो स्किल्स है, छोटे छोटे जो स्किल्स है, बॉडी स्किल्स, हमारे फिंगर्स, हमारा पाम, हमारा हैंड्स, इसके जो ये करने के बाद हमारे जो हैंड्स है, फिंगर्स है, वो वर्क करना चालू होते हैं. यहाँ पे हमारे मोटो स्किल्स डेवलप हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट tactile skill. I will repeat it again. A tactile skill is anything that involves the sense of touch, and one of the best way to develop the kind of shield is to work on things like hand eye coordination and activities that develop fine motor skill. So this was all about tactile activities. Now let us see what are tactile activities. So the first activity that is tactile activities में पहला activity है writing on sand. So first one is writing on sand. Put sand in different trays and ask the child to come and practice writing the letter or simple word on them. So writing on sand यानी क्या? तो यहाँ पे हम बच्चे को बुलाते हैं और उनको एक ट्रे देते हैं, जो ट्रे में पूरा ट्रे सैंड से भरा हुआ रहता है. द फुल ट्रे इज बीन कवर्ड विथ अ सैंड. सैंड यानी क्या? जो स्मूथ रहती है सैंड, वो है. और हम बच्चे को बुलाते हैं और उनको वो जो सैंड के ट्रे है उसके ऊपर हम उनको कुछ भी लिखने के लिए बोलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं. जैसे उनको लेटर्स लिखने के लिए बोलते हैं, उनको कुछ फेस ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, कुछ ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं. तो यहाँ पे वो अपना जो स्किल्स है वो डेवलप कर रहे हैं. कैसे? तो वो वहाँ पे अपना जो आइडियाज़ है वो एक्सप्रेस कर रहे, सैंड के ऊपर ड्रॉ करके एक्सप्रेस कर रहे. तो यहाँ पे वो ट्रेस के ऊपर आके जो सैंड है उसके ऊपर लेटर्स ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ पे वो अपना जो आइडियाज़ है वो वहाँ पे हमें दिखा रही है. तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे. सो यू हैव टू. तो ये कैसे करते हैं? तो ये एक ट्रे लेना है, वो ट्रे को पूरा सैंड से भरना है. आफ्टर फिलिंग द ट्रे विथ फुल ऑफ सैंड, then you have to call the child and tell him to practice something on tray, like to practice alphabets like A, B, C, D, E, F, G, etc. then to practice numbers. तो उनको बोलने का कि वहाँ जो ट्रे है सैंड है उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है. तो वो बच्चे अपने हाथों से वहाँ पे ड्रॉ करेंगे. इस प्रकार से उनका प्रैक्टिस भी होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट writing on sand, that is put sand in a different trays and ask the child to come and practice writing the letter or simple words on them. So this was all about writing on sand. Then is mother letters. Mother letters यानी यहाँ पे हम सब ग्रुप में बैठेंगे, चिल्ड्रन सब ग्रुप में बैठेंगे, और फिर जो लेटर दिया जाएगा वो लेटर से हमें दूसरा वर्ड्स बनाना है, या दूसरा मदर लेटर कौन सा है वो हमें ढूंढना. तो ऐसे ये जो गेम है ये हम ग्रुप में खेल सकते हैं. तो एक जन ने बोलने के बाद वो दूसरे को पास हो जाए, और ऐसे करते करते हर एक जन अलग अलग लेटर्स, अलग अलग वर्ड्स क्रिएट करेंगे. तो ऐसे हमें अलग अलग वर्ड्स सुनने के लिए मिलेगा, अलग अलग लेटर्स सुनने के लिए मिले. तो ये जो गेम है ये है मदर लेटर गेम, विच विल बी प्लेड इन अ ग्रुप. आपको दिख रहा है, पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हर एक ग्रुप में हर बच्चा बैठ के वो गेम खेल रहा है. तो एक ग्रुप है, वहाँ पे हर एक बच्चा बैठ के गेम खेल रहा है, और एक लड़की
वो बता रही है कि ये वर्ड है, ये लेटर है, तो वो पास ऑन हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट मदर लेटर. उसके बाद है पुटिंग पजल टुगेदर. सो गिव चिल्ड्रन पीस ऑफ पजल एंड आस्क देम टू पुट इट टुगेदर. तो यहाँ पे क्या करना है, पुटिंग पजल टुगेदर यानी पजल, जो हम पजल खेलते, तो यहाँ पे पजल के क्यूब्स रहेंगे, वो सब प्रॉपर प्लेस पे नहीं रहेंगे, शफल्ड रहेंगे. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वो सब पजल के पीस चिल्ड्रन को देने हैं, बच्चे को देने हैं, और फिर वो पीस लेके आपको जो ड्राइंग है, जो क्रिएट करना है, वो आपको अच्छी तरीके से अरेंज करना है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है. अरेंज करने के बाद आपको जो पिक्चर था वो प्रॉपरली मिल जाए. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो पजल के पीसेस है वो देने हैं और फिर वो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने हैं. सो दिस इज पुटिंग पजल टुगेदर. सो यू कैन सी द पिक्चर. Very good. So giving child piece of puzzle and ask them to put it together. So this was putting puzzle together game. Now students, in this we have studied the three types of game, that was writing on sand, mother letter and putting puzzle together. So this was all about tactile game activities where we have saw writing on sand, mother letter and putting puzzle together. Now students, turn your page. Now remove page number 68. अभी आपका पेज नंबर 68 खोलो. Okay. So on the page number 68, there is an other activity given. So just I will read it, then we will discuss it. Collect information on the following games and make the children play them. तो यहाँ पे हमें गेम्स दिए, वो गेम्स के इंफॉर्मेशन निकालने हैं और फिर हमें वो गेम्स खेलना है. सो द फर्स्ट गेम इज टेलिंग द कैट. टेलिंग द कैट, ये जो गेम है, तो यहाँ पे क्या दिया है, उन्होंने पिक्चर दिया है, वो पिक्चर में हमें कैट दी है और कैट की पूंछ है वो अलग दी है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो कैट की टेल है वो हमें कैट को अरेंज करनी है. यानी इस प्रकार से ही अलग अलग गेम्स आएंगे जहाँ पे हमें कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड या किसी भी चीज़ का हमें एक पिक्चर दिया जाएगा और उसका एक पार्ट सेपरेट हो जाएगा. तो हमें जो पार्ट सेपरेट है वो पार्ट हमें जो पिक्चर दिया है उसको ज्वाइन करना है, उसको ही हम टेलिंग कहते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने कैट का पिक्चर दिया है और कैट की पूंछ अलग की है, कैट की टेल अलग की है. तो हमें क्या करना है, जो कैट की टेल है वो कैट के बॉडी को टच करनी है, तो हमें वो चिपकानी है. सो दिस द गेम इज टेलिंग द कैट. ये जो गेम है वो सब सिटिंग गेम्स है. उसके बाद है फिलिंग वाटर विथ बोथ हैंड्स एज अ कप. तो यहाँ पे हमें कप में वाटर भरना है, जो कप है उसमें हमें पानी भरना है. हमारे दोनों हाथ का इस्तेमाल करके हमें वो कप में पानी भरना है. तो ये दूसरा गेम है. ये जो गेम है ये हम बैठ के कर सकते हैं. फिर चाइनीज़ विस्पर. चाइनीज़ विस्पर यानी यहाँ पे हम कुछ एक जन के कान में बोलेंगे और फिर वो जाके दूसरे के कान में बोले और ऐसे ही पास आउट हो जाएगा. जब वो लास्ट बच्चे तक जाएगा वो ज़ोर से चिल्ला के बोलेगा. तो हमें देखना है जो पहले बच्चे ने बोल के पास किया था वही सेम सेंटेंस वो बोल रहा है कि बाकी वो दूसरा सेंटेंस बोल रहा है. यानी यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से सुनना है. तो ये भी गेम हम बैठ के खेलते हैं. दिस इज़ चाइनीज़ विस्पर गेम. उसके बाद है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ टच. तो ये गेम में क्या करना है, ये गेम में हमारे आँखों पे पट्टी बंदी होगी और हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट्स रहेगा, वो ऑब्जेक्ट को हमें फील करना है, टच करना है और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है. सो यहाँ पे हमें हमारे हाथों से जो ऑब्जेक्ट है उसको टच करना है, फिर उसको फील करना है. उसके बाद हमें गेस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट को हमने टच किया है. एग्जाम्पल, अगर एक लड़के की आंखों पे पट्टी है और उसके सामने मैंने कार का टॉय रखा है पर उसको मालूम नहीं कि उसके सामने मैंने कौन सा टॉय रखा है, तो उसको क्या करना है, उसको वो टॉय को टच करना है, उसको फील करना है अपने हाथों से और फिर उसको गेस करने की कौन से ऑब्जेक्ट को वो टच कर रहा है. सो दिस इज आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट विथ हेल्प ऑफ टच. सो ये गेम भी हम बैठ के खेलते हैं. सो
ये जितने भी गेम्स, ये 4 जो गेम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये गेम्स हम हमारे जगह पे बैठ के वी सिट डाउन एंड प्ले, सो उसको ही हम सिटिंग गेम खेलते हैं। सिटिंग गेम यानी क्या? द गेम्स दैट वी प्ले इन अ सिटिंग पोजिशन। जो गेम हम बैठ के खेलते हैं उसे ही हम सिटिंग गेम कहते हैं। तो पहला गेम कौन सा हमने देखा? टेलिंग द कैट। टेलिंग द कैट यानी यहाँ पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और उसका जो एक पार्ट है वो सेपरेट दिया जाएगा। हमें वो पार्ट प्रॉपर, जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपर प्लेस पे ज्वाइन करना है, पुट करना है। उससे ही हम टेलिंग द कैट या टेलिंग द ऑब्जेक्ट गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कैट का पिक्चर दिया था जहाँ पे हमने कैट की पूंछ को बराबर लगाया, तो ये एक सिटिंग गेम है। उसके बाद फिलिंग वाटर विथ बोथ हैंड्स एज अ कप। यहाँ पे हमें हमारे दोनों हाथ में पानी भरना है और वो कप के अंदर फिल करना है। सो दिस इज द गेम वेयर वी फिल द कप विथ वाटर विथ द हेल्प ऑफ आवर हैंड। तो हाथ में पूरा पानी लेके हम कप को फिल करते, उसे ही हम फिलिंग वाटर विथ बोथ हैंड एज अ कप कहते हैं। सो ये गेम भी हम नीचे बैठ के ही खेलते हैं और ग्रुप में खेलते हैं। उसके बाद हमने देखा चाइनीज़ विस्पर। तो चाइनीज़ विस्पर में क्या होता है? तो चाइनीज़ विस्पर में हर एक जन बैठ के एक लाइन में बैठे हुए रहते हैं और एक स्टार्टिंग का जो प्लेयर है वो कुछ दूसरों के कान में बोलता है, एक सेंटेंस कान में बोलता है और फिर वो दूसरा लड़का वो पास आउट करता है। वो पास आउट करते करते वो लास्ट तक जाता है और जो लास्ट बच्चा है उसके कान में वो बोलता है। वो बच्चा, लास्ट वाला बच्चा, वो जोर से सेंटेंस रिपीट करने वाला है। उसने रिपीट करने के बाद मालूम पड़ता है कि जो सेंटेंस फर्स्ट बच्चे ने पास किया था और जो लास्ट बच्चे ने बोला है वो दोनों सेंटेंस सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ, जब पास कर रहे थे तभी एक दूसरे ने अलग पास किया, यानी उनको जो सुनाई दिया उन्होंने वो पास किया। तो ये चाइनीज़ विस्पर गेम है, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और ये भी गेम हम बैठ के खेलते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो सिटिंग गेम। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ टच। तो यहाँ पे हमारे आँखों पे पट्टी रहती है और हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखी है और वो ऑब्जेक्ट्स को हमें टच करना है, उसको फील करना है और फिर बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और फिर हमें आइडेंटिफाई करके वो ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। सो ये गेम भी हम बैठ के खेलते हैं। सो दिस आर द ऑल गेम्स दैट वी सिट डाउन एंड प्ले। सो दिस आर नोन एज सिटिंग गेम्स। सो स्टूडेंट, I hope you have understood today's lecture. Now students, let us recap what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have saw about sedentary games, where we have saw what is mean by sedentary games. Sedentary games means the games that we play while sitting. The games that are played during sitting position are known as sedentary games. Then we have saw a textile skill is anything that involves the sense of touch, and one of the best way to develop this kind of skills is to work or things like hands, eye coordination and activities that develop fine motor skill. Then we have saw 3 types of tactile games activities. That was first was writing on sand. So here we write on sand, we practice on sand, we do practice on sand, like we draw letters, we draw numbers, we draw simple words, etc. So this we do on sand. Then second was mother nature. Then we have saw about what is mean by mother nature. This game is been played in a group where we sit down and we play this game. Then we have saw putting puzzle together. Then we have saw putting puzzle together, where we give pieces of puzzles to a child and that child join all the pieces of puzzle in a sequence and prepare a picture. So this is putting puzzle together. Then on page number 68 we have saw about various other games, that is various sitting games, where we have saw about the tailing the cat, where we are been given with a picture and a separate part of that picture we have to join that part of the picture separate part to a proper picture, that is tailing the cat. Then we have saw filling water with both hands as a cup, where we have been provided with cup, we have to take a waters in our hand and we have to fill that cup. Then we have saw about Chinese whisper, where we will pass a sentence to other person and last we will hear that sentence, is this sentence that we have passed or it is different sentence. Then we have saw about identifying object with help of a touch, where
eyes it's been closed with a cloth, and we have been given or we have been provided with an object. We have to fill that object and we have to identify what is that object. So these all games were sitting games. So students, I hope you have understood today's lecture. नाउ स्टूडेंट, इट्स अ होमवर्क टाइम. सो आज का आपका होमवर्क है, आपको खाली ईवीएस कंबाइंड बुक में पेज नंबर 67 और 68 जो आज मैंने सिखाया है वो आपको खाली 2 टाइम्स रीड करना है. तो आपका होमवर्क खाली आपको ये जो आज मैंने सिखाया है पेज नंबर 67 और 68 पे, वो आपको खाली 2 बार रीड करना है. जो आपके कंबाइंड बुक में दिया है वो आपको 2 बार रीड करना है. ये आपका होमवर्क है, आपको ये खाली रीड ही करना है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू इट. सो स्टूडेंट, थैंक यू.